Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic, that is knowing our numbers. So we have different kinds of numbers which we are going to learn in this chapter. So let's start our topic one by one. So here we are having introduction, so leave it. So the first type of number we are having is natural numbers. So the numbers which we use from counting, that is 1, 2, 3, 4, 4 and so on, are called natural numbers, and we show a group of natural numbers is denoted by the letter n. This is n, this is 1, 2, 3, 4. Clear? So here we are having the smallest natural number is 1, and there is no greatest or largest natural number because there is no limit of largest natural number. So the third point is, if we take any natural number, we always add 1 to it to find the next natural number. Okay, next is whole number. The natural number 1 has no predecessor in natural number. We know that 1 minus 1 is 0. So hence 0 is the predecessor of 1, but 0 is not a natural number. So 1 has no predecessor in natural number, but it has precedence in the whole number. So if we're talking about the whole number, we will say 0 plus natural numbers are whole numbers. So there are some points to remember, just like all natural numbers are whole numbers and whole numbers are not natural numbers. We cannot find largest natural number whole number. 0 is the smallest whole number and the 1 is the smallest. Okay, next is system of numeration. So here we are having Indian system of numeration, just like Indian place value chart. So let's see. Here we are having, that is ones, thousands, lakhs, crores, arabs. So this is our Indian place value chart. So this is our periods. Then we are having places, ones, tens, hundreds, and we are having thousands, 10,000s, lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores, arabs, 10 arabs. Clear? So this is our Indian number of Indian system numeration. Next we are having international system of numeration. So here we are having, just like so we have to just see where is the table. Yes, here is the table. Okay, so here we are having, that is ones, tens, hundreds, and thousands. In thousand we are having thousands, 10,000 and 100,000s. Then we are having millions, 10 million, 100 millions. Then we are having billion, 10 billions and 100 billions. Okay. So now we are having some examples. Okay, from here we are having our exercise 1.5. So let's start our exercise. Question number 1, write the following numbers in words according to Indian system of numeration. Okay, let's click C part. So here we are having ones, tens, 100. This is 1000, this is 10,000, this is lakh, this is 10 lakhs. Clear? So here we are having, just like, now we are going to start from writing from the left hand side to right hand side. That is 57 lakh. Then we are having 6,000. Then 800. $95. Clear? So this is our. Next we are in question number 2. Write the following numbers in words according to international system numeration. Okay. Let's pick B part. Okay, here we are having, this is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Clear? So here we are having, we have to write it in international system. So international system we are having ones, tens, 100. This is 1000. This is 10,000. This is 100,000. This is then billion. So we are having 7 billion,
Then we are 952. This is 952,000 346. क्लियर? चलिए इतना कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन. नेक्स्ट आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. Okay, let's pick B part. Okay, here we are having ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़. चलिए और देखते हैं कहाँ तक हमें लिखना पड़ सकता है. 10 लाख इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं हम टेबल्स की फॉर्म में. Okay, here we are having 604. Then we are having 5, and this is 9, 4, 3, 2. So here we are having 2 crore 24 lakh 95,604. Clear? चलिए उसके बाद चलते हैं आगे. Next we are having question number 4. Write the following numerals in international place value chart. Okay, let's pick B part. Okay, so here we are having, this is ones, tens, 100. Then we are having 1,000, 10,000, 100,000. Then we are having million, 10 million, and 100 million. Yeah, so here we are having 257, 341, and this is 10. So here we are having 10,341,257. Clear? That's it. Okay, ये हो गया हमारे पास. Now, come to question number 5. Write the following in figures. So pick C part. 7,600,000. Okay, we have to write the number. This is 7 million. Okay, just put a comma here. 626. This is 626,000, comma 981. So here we are having our number. Okay, question number 6 is write the numerals for each of the following. Okay, let's pick B part. This is 7 crore. So, okay, we are writing 7 crore. Then we are having 52,000. So there is no place for legs. So 0. Then this is 52,000. Then 660. This is 660. Clear? चलिए उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. Write the numerals for the following number names, placing comma. Okay, so here we are having C 300. So here we are having 307 million. This is 307,752,280. So this is an answer. Okay, this is question number 8. Rewrite the following number names using International System of Numeration. So let's pick C part, that is 5 crore. Okay, this is 5 crore 27 lakh 31,581. So we are going to write it just like this is 52731,585. This is. So this is ones, tens, 100, 1,000, 10,000, 100,000.
this is million, 10 million. Okay, so we are going to write it just like 52 million. Then we are having 731,500 81. क्लियर? तो ये हो गया हमारा इन इंटरनेशनल सिस्टम कन्वर्शन. ओके, तो उसके बाद हमें क्वेश्चन बनाने बोलेगा राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन. चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं बी पार्ट. ओके, हियर वी आर हैविंग 27,341,607. सो हियर वी आर हैविंग 27 million. This is 27,341,607. चलिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में करते हैं इसको चेंज पहले. So we are having ones, tens, 100. This is 1,000. This is 10,000. ठीक है. This is lakh. This is 10 lakh, and this is crore. So we are having 2 crore. Then 73,000. Sorry, 73 lakhs. This 73 lakhs and 41,000. 607. चलिए, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, sorry, all questions are done. So we are going to our next topic, that is place value chart. So if we talk about place value chart, so we are having the first one is face value and the place value. The face value of digit in a numeral is the digit itself. अगर हम कोई भी नंबर देख रहे हैं तो अगर मैंने देखा यहाँ पर 6, तो 6 क्या है मेरी फेस वैल्यू. ठीक है. Then we are in place value. The place value of digit in a numeral is the value of the digit on the place occupied by it in the place value chart. So if we talk about this 5, तो अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूँ तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 5. लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ किस प्लेस पे 1 2 3 4 5, तो दिस इज 5. तो 5 कौन सा प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पर. तो ये हो जाएगा 50,000 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू. तो जो भी नंबर जिस प्लेस पे होगा तो हम उसी से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट विल गिव्स अस द प्लेस वैल्यू. नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म. तो एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पर गिवन है हमारे पास 10 लाख, 9 लाख, 60,000, 7,480. तो जब भी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बताया जाता है तो ये क्या शो करता है? प्लेस वैल्यूज. क्लियर? सो नेक्स्ट इज कंपैरिजन. Comparison of numbers we are having. By comparing two numbers we follow these steps. Okay, तो देखिए सबसे पहले तो हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं. अब जब हम डिजिट्स को कंपेयर करेंगे देन उनके फिर अगर डिजिट्स इक्वल है देन उनको हम पहले हम क्या करते हैं? डिजिट्स को कंपेयर करते हैं. फिर हम अगर वो सेम निकल जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उनके प्लेसेस को कंपेयर करते हैं. कैसे? चले देखते हैं यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज में. दैट इज 1.2. तो यहाँ पर आ गया स्टेट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब देखिए हम यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं जस्ट लाइक बी पार्ट. अब ये कौन से प्लेस पर है? 1 10 100 1000. तो 1 into 1000 प्लेस तो कितना हो जाएगा? 1000. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड नोटेशन.
ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसलिए यहाँ से जी पार्ट पिक कर लेता है. सो वी आर हैविंग वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, lakh, 10 lakh. ठीक है. सो दिस इज 10 lakh, दिस इज 90 lakh, दिस इज 6 lakh. Then we are having, this is 4,000. Then we are having 70. So this is our expanded form. Clear? Okay. Next is question number 3. Write the following numbers in standard form. So here we are having 20 lakhs. Okay, this is 20 lakh. This is 1 lakh. Okay, this is 90,000 and this 7,000. Okay, then we are having 820. उसका कुछ नहीं तो zero put कर लेती. So this is our standard form. Okay, now come to question number 4. Here we are having greater than, less than, equals to sign boxes. So we have to compare the numbers. So first thing we have to do is just pick this part. Let's compare the digits. This is 6-digit number. This is also 6-digit number. Clear? अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ये 3 है और ये क्या है 5. विच वन इज ग्रेटर, दिस वन. अब उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिस इज ओके. तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम से लग रहे हैं, बट हम क्या करते हैं प्लेसेस कंपेयर करते हैं. दिस 8-digit नंबर, दिस इज 7-digit नंबर, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन. क्लियर? तो आपको बस ऐसे ही कंपेयर करना है. अगर डिजिट सेम है तो आप प्लेसेस को कंपेयर करेंगे, अगर डिजिट्स ही ज़्यादा है तो वो नंबर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर पूछ जाएगा. अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5. दैट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो चलिए यहाँ से आ जाते हैं हम लोग. ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर देखते हैं. चलिए, सबसे पहली अच्छी चीज़ है कि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ठीक है. तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले. ओके, तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं डिजिट सेम है. हाँ, डिजिट सेम है. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखेंगे, दैट इज 15 लाख. चलिए हो गया 15,34,068. फिर इससे बड़ा नंबर देखेंगे, दैट इज 28 लाख. देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 65 लाख, 43,086. Then we are having 89 lakh. क्लियर? चलिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो चलिए यहाँ से हम फिक्स करते हैं अपना बी पार्ट. जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है. तो लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनकी जो प्लेसेस फिक्स हैं या नहीं है. 10 लाइक 1 2 3 4 5. सो डिजिट सेम है. अब प्लेसेस कंपेयर करते हैं. स्टार्टिंग में सबके पास 1 है. ओके, अगेन 1 2 3 1. So this is the greatest number, that is 1,32,145. Then it's a smaller number, then I pass 1,21,000. ठीक है. देन उसके बाद आ जाए पास 1,13,000. देन उससे छोटा नंबर लास्ट आया हमारे पास 1,12,345. क्लियर? चलिए, इतना रहने बाद 6 हो गया. देन उसके बाद हमारे पास आता है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. दैट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 9. ओके, सो वी आर हैविंग 9. दिस इज, तो हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू.
माइनस फेस वैल्यू, एंड प्लेस वैल्यू की बात करते हैं जब 3 2 एंड 2 हो गया 9 1 2 3। देन उसके बाद आता है फेस वैल्यू इज 9। आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो चलिए दिस इज 1 9 9 9 9 9 एंड दिस इज आर 8। उसके बाद आता है हमारे पास एस्टिमेशन। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज एस्टिमेशन। देखिए एस्टिमेशन में होता क्या है कि जब भी आप कोई भी नंबर सोचते हैं, जस्ट लाइक 9 हो गया तो आप उसका राउंड ऑफ करते हैं 10। अगर 11 है तो भी आप उसका राउंड ऑफ क्या करते हैं 10। लेकिन अगर आपके पास 18 या 19 आते हैं तो आप उसका राउंड ऑफ क्या कर देंगे 20। तो ये होता है नियरेस्ट हंड्रेड्स और एस्टिमेशन। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं हम अपने राउंड ऑफ क्वेश्चंस को। तो चलिए थोड़े से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही अच्छे से समझ में आता है, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.3। So the first one is estimate the following numbers to the nearest tens. So here we are have, let's pick one question just like this one, 643। अब देखिए आपको ये करना कैसे, नियरेस्ट टेंस में बोला तो टेंस प्लेस को देखेंगे दैट इज 43। ठीक है, अब 40 के दो ही राउंड ऑफ होंगे, या तो 40 होगा या फिर 50 होगा। एंड आप एक प्लेस छोटा देखेंगे जस्ट लाइक 3। अगर ये 5 से छोटा है, ठीक है, तो आप कौन से साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड। अगर बड़ा होता तो आप जाते राइट साइड। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 640। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए नियरेस्ट हंड्रेड्स में। तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। अब देखिए हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है तो आप 100 नंबर को चूज करेंगे 277। अब इसका राउंड ऑफ करेंगे तो या तो 200 आएगा या फिर 300 आएगा। अब क्योंकि 100 प्लेस है तो हम किस पे फोकस करेंगे, टेंस प्लेस पर। अगर ये 5 से छोटा होगा तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड, और बड़ा होगा तो किधर जाएंगे, राइट साइड। तो हमने देखा ये 5 से क्या हो गया, 7 ग्रेटर नंबर है। यहाँ पे राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 9300। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो चलिए थाउजेंड्स में देखेंगे तो यहाँ पर जाएगा बी पार्ट, चलिए हो जाएगा 7722। तो चलिए अभी हो गया हमारे पास 7000, इसके दो होंगे जस्ट लाइक 7000, इसके यहाँ होंगे 8000। ठीक है, तो चलिए 7000 होगा, 8000 हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, प्लेस 100 प्लेस। तो अगर ये 5 से छोटा होगा तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड। अगर ये 5 से बड़ा होगा तो हम किधर जाएंगे, राइट साइड। तो हमारे पास क्या आ गया, जस्ट लाइक 800, सॉरी 8000। क्लियर? चलिए उसके बाद है नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है, हंड्रेड्स में करना है, थाउजेंड्स में करना है। तो चलिए इस तीनों सेम पैटर्न पे बिलोंग करते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स पर। अब देखिए यहाँ पे इनका सम करना है तो 1194 हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है। तो उसका राउंड ऑफ वैल्यू कितना होगा 194। तो देखिए 9 आ गया तो 5 से बड़ा है ये वाला प्लेस, क्या हो जाएगा 1200 एंड 2190। अब देखिए ये फिर से जो हमारा टेंस प्लेस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस करेंगे देन यहाँ पर हो जाएगा 0033। दिस इज 3300 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 पर। तो यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू बोली हुई है, एस्टिमेट द डिफरेंस द राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। यहाँ पर आ जाएगा एफ पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8260। ठीक है, इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स में करना था। हाँ, तो हंड्रेड्स में करते हैं। चलिए तो इसको हंड्रेड्स में करेंगे तो हमने देखा यहाँ पर दिस इज 100 प्लेस, तो हमें 10 प्लेस पर देखना है 5 से बड़ा है, तो हो जाएगा 8300। देन इसको करेंगे तो 4919। अब ये 10 प्लेस है तो ये 5 से छोटा हो गया, तो ये एज इट इज रहेगा 4900। अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये होगा 00, दिस इज 7 एंड दिस इज 13। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड दिस इज 3। दिस इज 3400। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस। सो लेट्स पिक
दिस पार्ट। अब देखिए नियरेस्ट हंड्रेड्स में करना है, तो चलिए पहले इनको राउंड ऑफ कर लेते हैं। जस्ट लाइक ये 9 आ गया तो ये हो जाएगा बस 300, देन यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 100। मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 30,000। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एस्टिमेटेड क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से अब देखिए इन्हें राउंड ऑफ कर लेते हैं जो भी हमें नियरेस्ट लग रहा है। जस्ट लाइक ये 986 है तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, और 49 इसको राउंड ऑफ करेंगे टेंस में तो हो जाएगा 50। तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस वन, से 0 कैंसिल आउट और 5 2 10, तो हमारे पास कितना हो गया 20 एज आंसर। क्लियर। चलिए ओके, तो यहाँ पर आता है लार्जर नंबर्स वी यूज इन डेली लाइफ। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। ओके, हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.4, अ बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज दिस इन द फर्स्ट वीक एंड बुक्स वर्थ रुपीज दिस इन द सेकंड वीक। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस हैं। तो हियर वी आर हैविंग द मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस इज 30 kg इन 250 ग्राम एंड द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इज दिस, हाउ मच इज द मास ऑफ गैस कंटेन्ड इन इट। ओके, so we are going to write mass of cylinder filled with gas. ठीक है, that is 30 kg and 250 ग्राम। देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर देन यहाँ पर आ जाता है मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, that is 14 kg and 400 gram. Okay, now we have to find out the mass of gas. ठीक है, तो उसके लिए हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 5, दिस इज 8, दिस इज 29, दिस इज 5 एंड दिस इज 1। सो हियर वी आर हैविंग 15 kg एंड 850 ग्राम। इतना करने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम रोमन लैंग्वेज में देखते हैं। ठीक है, तो उन सिंबल्स के अपने अपने मीनिंग होते हैं नंबर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी आर हैविंग रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल। तो 1 के लिए क्या साइन होता है आई, 5 के लिए क्या होता है वी, 10 के लिए होता है एक्स, 50 के लिए होता है एल, 100 के लिए होता है सी, 500 के लिए होता है डी, 1000 के लिए होता है एम। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, इनको देख लेते हैं। So here we are having rule number 1, that is repetition of certain symbol means addition. अगर आप कोई नंबर बार बार सिंबल रिपीट करें, जस्ट लाइक आई 3 times, that is 1 + 1 + 1, that is 3। अगर सी को 3 times रिपीट करें, that is 300। Okay, so only 1, 10, 100, 1000 must be repeated। जो 1 और 10 के मल्टीपल्स है वो रिपीट हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल्स नहीं हो सकते। जस्ट लाइक 5, 500, सॉरी 550 और 500 जिसमें 5 आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल्स तो वो भी हो सकते हैं, बट जस्ट लाइक दिस नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, और आप 3 टाइम्स से ज़्यादा भी रिपीट नहीं कर सकते। ये सबसे अच्छी कंडीशन है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 2, द स्मॉलर सिंबल रिटर्न टू द राइट ऑफ द लार्जर सिंबल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर सिंबल। ओके, तो देखिए ये है हमारे पास 5 और ये हमारे पास 2 सिंबल हैं। तो हम अगर राइट में लिखते हैं तो उन्हें ऐड करना है। अगर हम कोई भी लार्जर सिंबल के राइट में लिखते हैं स्मॉलर सिंबल, तो हम हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग रूल 3, अ स्मॉलर सिंबल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर सिंबल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर सिंबल। तो चलिए यहाँ पर आता है अ स्मॉलर सिंबल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर सिंबल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर सिंबल। ठीक है, अब जस्ट लाइक हमारे पास हो गया यहाँ पर VLD। अब देखिए यहाँ पर
एक्स एल लिखा हुआ है, तो एल फॉर 50 एक्स फॉर 10, तो ये लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो वही जिसमें 5 आता है उसको आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी एंड एक्स ओनली, मतलब आई आप सिर्फ 5 और 10 में से माइनस कर सकते हैं, एक्स को 50 और 100 में से माइनस कर सकते हैं, सी को 500 और 1000 में से माइनस कर सकते हैं। ओके, so here we are having next rule, that is rule number 4. When a symbol is placed between two large symbols, it is always subtracted from the larger symbol immediately following. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो सिंबल्स के बीच में एक छोटा सिंबल है, तो हम इसको नेक्स्ट वाले नंबर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब इसी यहाँ पे हमारे पास आई थिंक क्वेश्चंस आ गए हैं विद एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, दैट इज 1.5। So here we are in question number 1. Write the Roman numerals for each of the following. तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास 95। अब देखिए 5 को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो पहले चलिए हम 90 लिखते हैं। 90 कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको चूज़ कर लेते हैं पहले एंड प्लेस कर लेते हैं दूसरी जगह। ओके, 95 में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 100 -10 कर दे तो 90 आ जाएगा, फिर 5 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो x इज़ फॉर 10 एंड l फॉर नहीं, ये तो होएगा c, तो c फॉर 100, उसके साइड में हमने क्या लिख दिया x, तो ये कितना होगा 90, और v यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 5, दैट इज 95। क्लियर? चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं यहाँ से, 635, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 600 कर लेते हैं, 10 + 30 + 5, 600 में 500 प्लस 100 करना पड़ेगा। 500 के सिंबल क्या होता है D, 100 के सिंबल क्या होता है C, 30 के लिए हम XXX कर सकते हैं, और 5 के लिए हम क्या करेंगे V, तो ये हो गया हमारे पास 635। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एज हिंदी और अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं these two parts। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम CDLXV, तो C फॉर 100, D फॉर 500, तो देखिए दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400, देन L फॉर 50, देन X फॉर 10 एंड दिस इज 5, तो इसको ऐड करेंगे, दिस इज +60 + 5, दिस विल बिकम 460। चलिए वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, आ जाते हैं D पार्ट पर। चलिए MDCLIV, M for 1000, D for this is for 500, then C for 100, then L for 50, then ये हमारे पास 4 लिखा हुआ है, लिख लेते हैं 4, तो हो जाएगा 1005 नहीं 600। चलिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्लासीफाई द फॉलोइंग न्यूमरल्स एज मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं सी पार्ट को। अब ये मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस, देखिए 4 टाइम्स x रिपीट हो रहा है, दिस इज फॉर मीनिंगलेस पर्पस। क्लियर? चलिए उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ से बी पार्ट। देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास L फॉर 50, 10 + 20 + 1, दिस इज 71। ओके, तो दिस इज L एंड दिस इज X, क्या हो जाएगा 50 - 10, that is 40, and +9, this will become 49. So which one is greater? This 71 is 49, and this is done. Okay, next is give the answer for each of the following in Roman numerals. Okay, तो इनको सॉल्व करना है एंड के आंसर रोमन न्यूमरल्स में लिखने हैं। ठीक है, चलिए पिक करते हैं। So here we are having XC11. Okay, तो C for 100 and -10. Then this is +2. So this is 92. And minus this is L is for 50. Then 10 + 5. That is 65. Now we are going to subtract these two numbers. So here we are having 7 and this is 2. This is 27.
So if we look here, so we are having 30 minus 3 करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 20 प्लस 5 प्लस 2। हाँ, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसी ही सही रहेगा। 20 के लिए हम यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ x लिखेंगे, 5 के लिए b एंड दिस इज 27। क्लियर? इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सो आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से याद हो पे होंगे और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।